لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں اور 40 لوگ ہو چکے ہیں۔ بغیر تاخیر کیے میں سیشن کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو میں اپنا تعارف کرواتا چلوں۔ میرا نام محمد ثناء اللہ گوری، پنجاب کی خوبصورت سی تحصیل دنیا پور ڈسٹرکٹ لودھرا سے میں بلونگ کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا سیکنڈ بیچ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور آج ہمارا فرسٹ ڈے ہے، تو آپ سب لوگ کیئرفلی ہو کے بیٹھے متوجہ ہونا ہے۔ آج کی جو ٹریننگ ہے آپ سب لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اسپیشل ہونے جا رہی ہے، اور اسپیشلی جو ماشاءاللہ ان دنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اکنیکس پلیٹ فارم کا حصہ بنے۔ آپ سب جتنے بھی لوگ ان دنوں میں اکنیکس پلیٹ فارم کا حصہ بنے، آپ سب لوگوں کو میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا، ویلکم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ آپ کا فیصلہ آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج لا سکتا ہے۔ لائف آپ کی تب چینج ہوگی کیونکہ آج ماشاءاللہ آپ کا فرسٹ ڈے ہے، آج آپ کی فرسٹ ٹریننگ ہے۔ اگر آج آپ کچھ سیکھ گئے، کل آنے والے وقت میں انشاءاللہ زندگی میں کچھ بڑا کر کے دکھائیں گے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، وقت بدلے گا، ضرور بدلے گا۔ اندھیرے جاتے نہیں صرف سوچ بدلنے سے، اندھیرے جاتے نہیں صرف سوچ لینے سے، چراغ خود نہیں جلتا، جلانا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ جتنے بھی لوگ اس سیشن کا حصہ بن چکے ہیں، کیئرفلی سننا ہے آپ نے یہ سیشن، اور اپنے پاس آپ سب لوگ ایک ڈائری رکھیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے موبائل میں نوٹ پیڈ ہوگا، اسے اوپن کر لیں، کیونکہ جو ٹرینر ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اپنا ٹائم نکالتا ہے اور آپ سب لوگوں کے لیے کچھ نیو لاتا ہے، سکھانا چاہتا ہے آپ کو، اس کے الفاظ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سیشن مکمل لینا ہے، سننا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا آپ اس ٹریننگ سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ تو بغیر تاخیر کیے، مجھے پتہ ہے آپ سب لوگوں کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے، میں ٹرینر کو انوائٹ کرنے چلا ہوں۔ انہیں انوائٹ کرنے سے پہلے ان کی نظر ایک میں پیارا سا شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ تمہارے آنے سے روشن ہو جائے میرا آنگن، تمہارے آنے سے روشن ہو جائے میرا آنگن، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے۔ تو آج کی ہماری اسپیشل ون آف دی موسٹ ٹرینر میڈم سدرا صادق، میں انہیں انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور باقاعدہ اس ٹریننگ کا آغاز کریں۔ السلام علیکم، میری آواز کلیئر ہے؟ ہلو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پلیٹ فارم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی میرے خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام تر لوگوں کا اس سیشن میں ویلکم کرتی ہوں، ہمارے اس ٹریننگ بیچ میں، کہ آپ تمام تر لوگوں نے اسے جوائن کیا ماشاءاللہ۔ اور یقیناً جو ہمارا اس ٹیچر انٹرپرینور ٹریننگ بیچ کا مقصد یہی ہے کہ کریٹ کرنے کا، کہ آپ تمام تر لوگوں تک ایک ایسی لرننگ اسٹیج جو ہے وہ پہنچائی جائے، جن کی بیسک ایسی بنیاد آپ لوگوں کو دی جائے جس پر آپ لوگ اپنا مقصد کو پورا کر سکیں۔ یقیناً یہاں پر بہت سارے لوگ بہت الگ الگ مقاصد کے تحت جنہوں نے اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا ہے، اور بہت لوگ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان چاہے جو جس بھی مقصد سے یہاں پر آیا ہے اس پلیٹ فارم پر، سب سے پہلی بنیاد یہی ہے کہ اسے بنیادی باتیں آنی چاہیے، اس کے اندر کچھ لرننگ اسکلز ہونی چاہیے، اسے سیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح سے مجھے اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ تو میں تمام تر لوگوں کو آج ایک ایسا جو ہے ہمارے اس ٹریننگ بیچ نمبر 2 میں ویلکم کرتی ہوں۔ اور ہلو، میری آواز کلیئر نہیں آ رہی؟
अच्छा, तो उसके बाद आप तमाम तो लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना है और इस सेशन को एंड तक लेना है। बेसिकली मौसम खराबी की वजह से मेरी जो है वो नेट का कुछ इशू बन रहा है, तो उसके लिए माजरत। शुरू करते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम हमारी 4 क्वाड्रेंट थ्योरी है। हमारे 2 टॉपिक हैं आज, जिसमें फर्स्ट है हमारी 4 क्वाड्रेंट थ्योरी और दूसरा है जॉब वर्सेस बिजनेस। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो हमारी 4 क्वाड्रेंट थ्योरी है वो डिस्कस करूंगी क्या है, कि वो है क्या। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग माइंडसेट से हैं। कोई क्या करता है, कोई किस तरह का जो है करियर में है, और हर कोई अपने दिमाग से अपने माइंडसेट के हिसाब से जो है वो अपना जो करियर है वो सेट करता है। और आप तमाम तो लोगों ने जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, असल में जी सिस्टर, जी नेट मेरी इशू हो गया था आपका? जी सर, वो नेट इशू हो गया, पता नहीं क्या मसला है अब। मैं तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल इशू होता है, इसे सब लोग अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी आप सब लोग एक्टिव हो जाएं, आप शेयरिंग का आगाज करें, स्टार्टअप करें, और सब लोग ना मोबाइल में नोट पैड ओपन कर लें या डायरी पेन ओपन कर लें। अच्छे अच्छे पॉइंट माशाल्लाह इन्होंने आज आपको डिस्कस करने बताने, वो नोट कर लीजिएगा। जो चीज समझ में ना आए वो आपने ग्रुप में डिस्कशन कर लेनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। जी सिस्टर, ओवर टू यू। जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आप लोगों के साथ आज जो 4 क्वाड्रेंट थ्योरी डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी की 4 क्वाड्रेंट थ्योरी, जो एक अमेरिकन बिज़नेसमैन है। बहुत ही अच्छे बिज़नेसमैन हैं और जिनकी बुक्स जो है, वो इस बिज़नेस के हिसाब से और इस माइंडसेट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ही ज़्यादा सेल भी हो रही हैं। तो उनकी ये 4 क्वाड्रेंट थ्योरी ये है, जिसमें उनकी थ्योरी फर्स्ट ये है कि ESBI। हम 4 क्वाड्रेंट है ना, एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम अक्सर स्कूल्स में भी पढ़ते हैं कि पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। वो बिल्कुल थ्योरी इस तरह है जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ई है, सेकंड क्वाड्रेंट में बी है और थर्ड में एस है और फोर्थ में आई है, यानी ESBI थ्योरी। जिसमें आप तमाम तो लोगों को वो ये बताता है कि अगर एज अ स्टूडेंट आप इन चारों में से कोई करियर सेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मुझे क्या करना है, तो वो चीज आप इसके थ्रू जो है डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय वो होता है जो किसी भी जगह जॉब करता है, यानी जो जॉब होल्डर पर्सन है वो एम्प्लॉय होता है। जॉब होल्डर पर्सन जो होता है वो एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय क्या करता है कि वो किसी भी जगह जो है जॉब करता है, ठीक है, यानी किसी कंपनी में जो है वो जॉब करता है और उसके बाद उसको उसके अंदर एक जो एम्प्लॉय होता है उसके अंदर ये चीज होती है कि वो मतलब उसका अपना कोई करियर नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट इतना ज्यादा नहीं होता और वो किसी भी कंपनी में किसी ऑनर के अंडर एम्प्लॉय जो है वो जॉब करता है। उसके बाद आपका दूसरा क्वाड्रेंट है एस, जिसमें एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, यानी जो कोई बंदा अगर अपना कोई छोटा सा बिजनेस करता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी स्मॉल बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड। एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सेल्फ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉक्टर है, ठीक है, वो अपना क्लिनिक बनाता है,
अपना एक छोटा सा क्लिनिक जिसके अंदर वो जो है वो लोगों का इलाज करता है, तो फिर उसके बाद वो मतलब अगर वो क्लिनिक ओपन करता है तो उसका अपना बिजनेस शॉर्ट सा। अगर वो क्लिनिक ओपन करता है तो उसको अर्निंग आती है, अगर वो क्लिनिक बंद कर देता है उसको अर्निंग नहीं आएगी। ये है उसका स्मॉल बिजनेस, जिसमें मतलब एक पर्सन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका अपना काम है। आगे चलते हैं, थर्ड है हमारा जो बी यानी बिग बिजनेस या बिजनेस ऑनर इसे आप कह सकते हैं, जिसमें कोई बंदा, कोई इंसान जो है, एक पर्सनालिटी, वो अपना एक सिस्टम जो है बनाती है, एक बड़ा सिस्टम जिसके अंदर कुछ लोग उसके अंडर काम करते हैं। अगर वो बंदा 1 साल के लिए चाहे कुछ टाइम के लिए अपने उस बिजनेस को लीव भी कर देता है, तो फिर उसको लीव भी कर देता है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि उसके जो अंडर काम है, जो उसकी टीम है वो काम कर रही होगी, तो उसका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। उसके नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है इन्वेस्टर्स। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर, जिसमें जो बंदा है वो यानी खुद काम नहीं करता, उसका जो पैसा है वो काम करता है। ये हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, जिसमें आजकल बहुत सारे जो मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहे हैं बेसिकली, लेकिन जो हमारी कंट्री में तो ये बहुत ज्यादा फेक हो जाता है, यानी स्कैम कर जाते हैं पाकिस्तान में। लेकिन बाकी जो है इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं उनमें मोस्टली जो है इन्वेस्टमेंट प्लान वर्क करते हैं, जिसमें अगर एक पर्सन है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, वो मतलब कुछ पैसे हैं वो लगाता है, ठीक है, उसके बदले में वो इनकम डबल होकर उसे आती है। फिर वो उसके बदले में कुछ ज्यादा पैसे लगाता है, और जो ज्यादा रोटेशन ऑफ मनी, आरओआई बेस्ड कहते हैं इसको, कि वो इन्वेस्टर जो होते हैं वो बिल्कुल स्लो वर्क होता है। यानी अगर हमारे पास भी हम बिजनेस प्लान ऑफर करते हैं तो उन लोगों को अक्सर लोगों को पैसों की नहीं कमी होती, कि यानी हम 3,000 नहीं लगा सकते, 7,000 नहीं लगा सकते, या इतने पैसे नहीं लगा सकते। उन लोगों को होता है कि वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। जो बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं वो बस पैसा लगा के नॉर्मल होते हैं, यानी उनका जो मनी है वो काम करती है। मैंने जैसे पहले आपको बताया फोर क्वाड्रेंट थ्योरी के बारे में, एक दोबारा से मैं आपको उसका जो है सिंपल सा ओवरव्यू दूंगी कि ये एम्प्लॉय एम्प्लॉय वो होता है जो कहीं जॉब करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एज सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो अपना छोटा सा बिजनेस करते हैं, जिनके ऊपर यानी वो जितना काम करते हैं उन्होंने उतना काम किया, उसके बाद उनके अंडर कुछ लोग नहीं है, वो एक शॉर्ट सा बिजनेस है, उसका अपना छोटा सा क्लिनिक है, या एक टीचर है तो उसकी छोटी सी एकेडमी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बी, ई एस के बाद है हमारे पास बी, जो बी स्टैंड फॉर बिग बिजनेस या बिजनेस ऑनर, जिसमें एक इंसान पूरा सिस्टम बनाता है, ठीक है, एक पूरा सिस्टम बिल्ड करता है जिसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो एक टीम वर्क है। उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताया आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। हमारे यहाँ अक्सर जो हमें माइंडसेट दिया जाता है ना, वो क्या माइंडसेट होता है कि हम लोग को जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने को कहा जाता है, यानी हमें हमें जॉब होल्डर वाला दिमाग दिया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर ऐसे ही है कि हमें कहा जाता है आप लोगों ने 14-15 साल 16 साल जितना भी पढ़ के आप लोगों ने जॉब करनी है। अगर आप लोग सर्वे करें ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज का, स्कूल्स का, बहुत ही कम लोग जो है आपको मिलेंगे जो ये माइंडसेट रखते हो कि उन्होंने जॉब नहीं करनी, कोई अपना बिजनेस जो है वो बिल्ड करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है कि अगर आप किसी को भी कहेंगे कि मैंने बड़ा होके, जॉब का मतलब क्या है, नौकरी, यानी एक वो नौकर के जुमरे में आ जाता है, जिसमें आप एक ऑनर के अंडर हैं, जो बंदा के भाई हम नौकरी कर रहे हैं किसी बंदे के अंडर, हम अब वो अगर कोई हमें लीव चाहिए तो हम नहीं ले सकते अपनी मर्जी से, हम उसके ऑल ओवर हमें उसका वहां मानना है कि वो हमारा ऑनर है। हालांकि 14-15 साल की पढ़ाई के बाद हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम अपने बलबूते पर भी कुछ नहीं कर सकते। और जो जॉब होती है, अक्सर लोग जो है जानते हैं अफादियत बिजनेस की भी, लेकिन जॉब क्या प्रोवाइड करती है उनको, जॉब में वो लोग कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल जो है वो स्टेबल है, ठीक है, हम लोग बिल्कुल स्टेबल हैं, हम सिक्योर हैं, हमें बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। अब स्टेबल, सिक्योर और बेनिफिट्स का क्या मतलब है? स्टेबल यानी स्टेबिलिटी, यानी हम बिल्कुल एक जैसे होता है ना कि हमें 50,000 की तनख्वाह हमारी फिक्स है,
जो हमें आ जाएगी, ये स्टेबिलिटी है, मेंटेन की हुई है यानी। अच्छा, अब उसके बाद सिक्योर सिस्टम क्या है कि उसको ये डर नहीं है कि मतलब अभी उसको उसको पता है कि 1 महीने के बाद उसके बैंक के अंदर उसका चेक आ जाएगा, वो बिल्कुल महफूज है इस लिहाज से, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स, वो क्या फवायद बताता है कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब है, अगर मैं रिटायर भी हो गया उसके बाद मुझे जो अपनी इनकम है वो आती रहेगी, हाँ ये माना जाता है। अब बात यहाँ ये नहीं है कि जॉब जो है वो कोई गलत चीज है, ठीक है। हाँ, जॉब आपकी नीड्स पूरी करती है, लेकिन ये आपको महदूद कर देती है, या आपके जो ख्वाब है उनको भी बड़ा छोटा कर देती है। आप अक्सर देखें जो जॉब होल्डर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हाल और इस तरह से होंगे, यानी उनके अंदर की जो वो कुव्वत होती है ना, जो एक जिंदा दिली होती है, वो अक्सर रेयरली केसेस होते होंगे, बहुत कम जिनमें शायद वो बिल्कुल ठीक होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक जो सैलरी भी दी जाती है वो बहुत मतलब उस लिहाज से होती है कि बस उसकी नीड्स पूरी पूरी हो जाती हैं, उसके अलावा वो कोई एक ख्वाहिशात नहीं रख सकता। तो जॉब और उसके बाद जो बिजनेस है, बिजनेस होता है कारोबार जो आप कुछ लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर आपको ऑल ओवर आजादी होती है कि आप अपने बिजनेस, आप अपने ऑनर भी खुद हैं, ठीक है ना। आप अपने ऑनर अपने खुद हैं, यानी आपने अपना बिजनेस शुरू किया, आप अपने ऑनर खुद हैं, आप उसको जितना मर्जी टाइम देना चाहें आप दे के उसको ग्रो कर सकते हैं। अब जॉब और बिजनेस में फर्क इस तरह से आ जाता है और लोग इस तरह से डर जाते हैं कि बिजनेस जो है वो करते हैं, वो लोग करते हैं जो रिस्क लेने का जिगर रखते हैं। उन्हें इस चीज का पता होता है कि अगर मैं रिस्क लूंगा, ये जो बिजनेस होता है एक रिस्क होता है, यानी अगर एक बंदा एक से नॉर्मल बिजनेस की बात करें कि अगर एक बंदा 1 से 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके जो है एक बिजनेस खड़ा करता है, ठीक है। अब वो एक रिस्क ही है कि पता नहीं कब चलेगा, क्योंकि फौरन से तो नहीं स्टार्ट हो जाता। अब जॉब में क्या है कि 1 महीने बाद उसे फिक्स सैलरी आ जाएगी, बिजनेस रिस्क पे है कि पता नहीं है कि 1 महीने के बाद फिक्स मुझे 50,000 आएगी या नहीं आएगी। बिजनेस के अंदर हमें लॉस भी होता है। अब जॉब के अंदर कोई लॉस का वो नहीं बाकी रहता, इसलिए लोग कहते हैं कि हम इसमें बिल्कुल सिक्योर हैं, हम भाई महफूज हैं, लोग बिजनेस की तरफ आते ही नहीं है। बिजनेस के अंदर क्या होता है, लेकिन इसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 50,000 फिक्स नहीं है, ये हमारी लिमिट नहीं है कि हमें 50,000 ही आता है। जॉब में ऐसे है कि 12 घंटे काम कर रहे हो, आपको 25,000 आ रही है, 50,000 आ रही है। लेकिन बिजनेस के अंदर है कि अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हो लेकिन आप खुद को अपग्रेड भी कर रहे हैं साथ साथ, उन्हीं 12 घंटों के अंदर एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा रहे, उन्हीं 12 घंटों के अंदर, 10 के अंदर, 5 के अंदर, जितना भी टाइम आप अपने बिजनेस को दे रहे हैं वो ग्रो कर रहा है, तो आप 1 लाख तक भी अर्निंग चली जाएगी, 1.5 लाख तक भी चली जाएगी, 2 लाख तक भी चली जाएगी, और हो सकता है कभी 50,000 भी ना आए। ये चीज होती है, इसलिए हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट की बुक्स तो पढ़ाता है। हाँ, बिजनेस की, हम भाई क्या किया हुआ है, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का ये कोर्स किया हुआ है, या ये मैंने जो है स्टडी की है, लेकिन वो जैसे उस यूनिवर्सिटी से वो बुक्स पढ़ के बाहर निकलता है, उसको हमारे यहाँ का माहौल ही नहीं दिया जाता कि कारोबार करना कैसे है या क्या करना है। वो एक उसके बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या चाहे जो भी है, वो अगर जाके अपना एक जाके भाई जॉब कर लेगा, वो 50,000 उसे सैलरी आ रही है, या वो अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। लेकिन जो बिजनेस टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो टीम वर्क जिसमें होता है, उसकी बात बहुत अलग होती है। और इसके अंदर आप लोग के मतलब जैसे 1 साल में अब एक जॉब होल्डर है, वो अगर उसकी 25,000 सैलरी है, उसमें वो 5,000 या 30,000 है, 60,000 है, चले मान लेते हैं, वो उसमें से 5,000 सेविंग करता रहता है, तो 1 साल बाद उसकी 60,000 सेविंग हो जाती है। एक एक जॉब होल्डर की बात है। अब बिजनेसमैन की बात कर लेते हैं कि एक बिजनेसमैन है जो अपने कुछ पैसे, यानी वो क्या करता है कि वो एक बिजनेस खोल लेता है जिसके अंदर 10 लोगों को रखता है और 10 लोगों को 25-25,000 सैलरी देता है। उसने पहले अपने पैसे लगाए हैं, 2 से 2.5 लाख लगाए, ठीक है, और उसने एम्प्लॉयज रखे जिनको 25-25,000 वो सैलरी देता है। तो उस हिसाब से अब उसे मंथली भी वो ये क्या करेगा, उनको भी पैसे दे रहा है, लेकिन उसको भी 1 से 1.5 लाख प्रॉफिट आ रहा है, जिसमें से 50,000 तो उसका खर्चा है और लाख रुपया उसे जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। ये चीज होती है कि हम सब लोगों के माइंडसेट की बात होती है कि हम अपने दिमाग को किस तरह से ट्रेन करते
हैं। हमारे यहाँ कारोबार बिज़नेस क्या है, जॉब के अंदर हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें एक एजुकेशन की ज़रूरत है और स्किल की ज़रूरत है। आपकी सैलरी किस तरह बढ़ती है? एक्सपीरियंस की बेस पे बढ़ती है जॉब के अंदर, कि इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया तो इसे प्रमोशन मिल गई। प्रमोशन भी कब मिलती है? 1 साल के बाद मिलती है, कोई जल्दी नहीं मिल जाती। मेरे साथ एक पर्सन की बात हुई जो कहते हैं कि वो 3 साल से जॉब कर रहे हैं और उनकी 25,000 सैलरी पर मंथ है। 3 इयर्स हो गए हैं जॉब करते हुए, लेकिन अगर हमारे जो है माशाल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म पर हमारे टॉप अर्नर माशाल्लाह सर फैसल बलोच की बात की जाए, अल्लाह नज़र बद से बचाए, तो उनकी पर उन्हें 1.5 लाख 1.5 साल हुआ है और अब उनकी जो अर्निंग है पर मंथ अबाउट 8 टू 9 लाख है और वो अपने घर में मतलब एक सिक्योर वे से घर में बैठे बिजनेस कर रहे हैं। ये होती है एक कारोबार की अहमियत। जॉब भी गलत नहीं है। हाँ, आप जॉब के साथ एक ऐसा सिस्टम भी तो रखें जो आपको अगर आप यानी किसी गलत जो है आपके ऊपर कोई बुरा वक़्त आ जाता है जिसमें आपकी सब सैलरी बिल्कुल लिमिटेड है। 50,000 सैलरी लिमिटेड है। अब उसके ऊपर का कहाँ से आएगा? 5,000 आपने बचत भी करनी है क्योंकि वो भी किसी काम आ सकती है। तो आपके साइड पे एक जॉब और बिज़नेस में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जॉब आपको गुलामी की तरफ भी ले जाती है, कि आप बिल्कुल दबे-दबे से रहते हैं। आपको लगता है कि बस अब किसी दिन अगर आप थक गए हैं, आपको छुट्टी करनी है, कम्फ़र्ट ज़ोन नहीं आता उसके अंदर। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप लोग मतलब एक अगर बंदा है, वो अपनी जॉब का माइंडसेट रखता भी है, तो ज़रूरी नहीं है वो बिज़नेस कर सके। अगर हम उसे बिज़नेस के बारे में बताएँ, क्योंकि वही इंसान बिज़नेस कर सकता है जो अपने अंदर इस चीज़ की कुव्वत रखता है कि वो कर लेगा। अगर आप हर एक बंदे को बता दें ना उसके ऊपर आगे आप सामने सारी उस बेनिफिट्स को रख दें कि सर बिज़नेस के ये बेनिफिट्स हैं कारोबार के, वो बंदा फिर भी नहीं आपको मतलब समझेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ही वैसा बना हुआ है। तो हमारे अंदर हमारे मुआशरे में भी इसी चीज़ को जैसे बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है कि हम उन लोगों को बताएँ कि आप लोग बिज़नेस में किन फ़ायदों पर जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद जो एक मतलब बिज़नेस है वो आप मतलब बना कैसे सकते हैं, आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है एक आइडिया की। आप किसी बंदे से ये भी नहीं पूछ सकते कि भई मैं कैसा बिज़नेस करूँ? मैं क्या करूँ? जब आपको ही नहीं पता कि आपने क्या करना है, अगले बंदे ने आपको क्या बताना है कि आपने क्या करना है? आपको एक ऐसा अब यूँ भी नहीं है बिज़नेस आप करें, कुछ ऐसे 2 कोई 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके आप अपना बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद वो लॉस हो गया और आप कहें कि बिज़नेस में तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और कि दूसरों लोगों को भी आप कह रहे हो बिज़नेस ना करना कभी, बिज़नेस में तो फ़ायदा ही नहीं है। देखें, ऑब्ज़र्व करें, अपॉर्च्युनिटिस्ट बने यानी ऐसे मौके आप दूसरों के लिए ढूँढें आके आप अगर एक वैसा बिज़नेस कर रहे हैं, क्या ये लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकता है? जैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप लोग आए, इस ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर, यकीनन आपको लगा कि आप इसमें कुछ बन सकते हैं। एक प्रायोरिटी दी आपने, तरजीह दी इस प्लेटफ़ॉर्म को। ये प्लेटफ़ॉर्म एक अहमियत रखता है तो आप लोगों को जो है वो लगा कि आप लोग इस पर आकर कुछ बन सकते हैं। तो एक ऐसा कारोबार बनाएँ, अपना नज़रिया उस हिसाब से देखें कि भई हाँ, मैंने मुआयना किया है, मैंने ऑब्ज़र्वेंस की है, मुशाहिदा किया है, ये बिज़नेस जो है ना मेरा इस तरह से सेट हो सकता है। पहले होता है सबसे पहले आपका आइडिया। कि यानी आपके पास किस तरह का आइडिया, उसके बाद आप बनाते हैं माइंडसेट कि मुझे इस तरह से इतनी टीम रखनी है और इतना काम करना है, उस कारोबार को बनाने के लिए, उस कारोबार को बिल्ड करने के लिए। और फेलियर्स का वेलकम करना सीखें कि अगर आप एक कारोबार करते भी हैं, तो फेलियर्स का वेलकम करना सीखें। और एक जॉब होल्डर कभी भी फेलियर के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि उसको फिक्स सैलरी आ रही है 50,000। अब यहीं पर बात की जाए कि जो कोरोना वायरस मतलब जैसे आया, अब इसके दौरान बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ने अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो निकाल दिया था, क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एम्प्लॉइज़ को क्या देनी है। अब यहाँ पे जॉब होल्डर सिक्योर नहीं है। हाँ, नॉर्मली देखा जाए तो वो सिक्योर है भी कि उसको 50,000 सैलरी फिक्स आ जाती है। एक बिज़नेसमैन का अभी पता नहीं है कि उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसे कब जो है वो इतना आना शुरू होता है या कब उसका प्रॉफ़िट बढ़ जाए, कब उसका प्रॉफ़िट जो है वो कम हो जाए। लेकिन जब इस ऑनलाइन के दौर में हम जो ऑनलाइन ये बिज़नेस कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा बिज़नेस स्टार्ट में स्लो होगा लेकिन वी शुड हैव टू बी रेडी टू वेलकम फेलियर्स। हमें वेलकम करना चाहिए फेलियर्स को, हमें तैयार रहना चाहिए, जिगरा रखना चाहिए कि भई हाँ, हम एक कारोबार कर रहे हैं, तो हमें तैयार रहना है, अपने आप को पहले ही मज़बूत रखें। अगर आप एक किताब उठा के पढ़ लेते हैं ना कि ऐसे-ऐसे स्विमिंग करनी है और आप किताब बंद करके रख के आपको भई कहा जाए कि आप स्विमिंग करना शुरू कर दें, करना शुरू हो जाएँगे, कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे और 100% नहीं कर सकेंगे। हाँ, कोई एक हो सकता है शायद।
क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज में नहीं आ रहे ना, तब तक आप उस चीज को फेस भी नहीं कर सकते। जब तक आप उसके अंदर, उस तालाब के अंदर मतलब जाकर, उस स्विमिंग पूल के अंदर जाकर तैरना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किस तरह से करना है। बिल्कुल उसी तरह बिजनेस में आकर आप फेलियर्स को जब तक अपना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप बिजनेस में भी ग्रो नहीं कर सकते। तब यही लोग होते हैं जो अगर फेलियर्स के लिए तैयार नहीं होते, वो जॉब की तरफ भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को कॉन्टिन्यूअसली लर्निंग करनी होती है। अपना जो सीखने के मराहिल है उनको लाजमी तौर पर जारी रखें। अगर कहीं फेलियर आ भी गया है तो देखिए कि मेरी गलती कहाँ थी। ठीक है, हम लोग पता है किस पे इल्जाम देते हैं? हम लोग देते हैं ऐसी चीजों पे इल्जाम जो मतलब अब हम पूरे सिस्टम पर मतलब धब्बा लगा देंगे कि सिस्टम का कसूर है। कोई आपके साथ ज्वाइन हुआ है, आप किसी के साथ ज्वाइन हो, आप उस बंदे को कहे सिस्टम का कसूर है, वो जाके पूरे सिस्टम को अब वो कर देगा। वो नहीं कुछ कर सकता उस सिस्टम का ऑल ओवर, क्योंकि वो अच्छा चल रहा है, बाकी सबका तो चल रहा है ना। हमारे यहाँ लोगों को बस इल्जाम लगाने की आदत है कि भाई इस वजह से ये हो गया, वरना मैं ये कर लेता। हम लोग अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के बजाय, अपनी मिस्टेक्स को ढूंढ कर उनका काम करके लर्निंग करने के बजाय, हम लोग ढूंढते हैं दूसरों के कसूर को। हम लोगों के दरमियान अगर गैदरिंग हो जाती है ना, हम लोग कुछ लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो हम क्या दूसरों की बुराइयां करते हैं, बजाय इस पे कि हम अपनी वर्किंग पे ध्यान दें, कि हमारे अंदर जो अपने एक दूसरे के साथ बैठकर गलतियों को निकाल कर देखें कि क्यों मैं इस तरह से नहीं हूं। अगर आप लोग कि अगर आप कुछ तरक्की नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ सब आते जाते सारा कसूर बस हुकूमत पर ही है कि अगर नौकरी नहीं मिल रही तो हुकूमत, तो ये चीज वो चीज, बहुत सारी चीजें जिसमें हम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो अगर हम किसी बंदे के पास अपॉर्चुनिटी लेकर जाते हैं या कोई बंदा हमारे पास आता है उसे हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो बस यही कहता है कि लोग तो मानते नहीं है। मैं बेसिकली कानपुर से हूँ और यहाँ पर लोग यकीनन ऐसा नजरिया नहीं रखते कि उन लोगों के अंदर कोई जोश हो, कोई जज्बा हो। यहाँ पर बहुत ही क्लोज माइंडेड सोच है, बहुत ज्यादा, यानी एक डर, एक खौफ। जैसे क्योंकि हमारे ही जो है सिटी से एचपी पॉक्स जो ट्रेडिंग है कंपनी, वो भागी थी साइट जो थी। तो उसके बाद अब लोगों ने ये सोच लिया कि हर आने वाली जो साइट है, हर आने वाली जो कंपनी है वो फेक है। तो यहाँ पर जब जितने भी लोगों से शेयर किया, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कंपनी से कुछ है, कानपुर के लोग तो मानेंगे ही नहीं। बंदा उनसे पूछे कि पूरी दुनिया में बस कानपुर के ही लोग रह गए हैं, कि पूरे मुल्क में कानपुर के लोग रह गए हैं। यहाँ है लोगों की सोच के जिन्होंने इल्जाम लगाना है, बस लोग नहीं मानेंगे। हमारा बिजनेस और जॉब, ये चीजें वो हमारा हर चीज डिपेंड करती है हमारे माइंडसेट पर। और अपने आप बहादुर तब होंगे जब आप लर्निंग कर रहे हैं और अपनी मिस्टेक्स पर काम करना सीख रहे हैं। जब आप एक बिजनेस में आते हैं ना, तो आपने ऐसे लोगों को ढूंढना है जिन लोगों के दरमियान बैठकर आप लोगों को एक स्किल मिले, लर्निंग मिले, और आप लोगों के अंदर बहादुरी पैदा हो कि हाँ मैंने ये करना है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द बेशक आपकी फैमिली है, ठीक है, आप तमाम तर लोग जो है, आप लोगों के इर्द गिर्द वही लोग हैं जो आपको ये कहेंगे कि ये किया और इस तरह से नहीं करें। और अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर अपने से बेहतर लोगों को लाएं। ठीक है, यानी आप अगर है ना एक टीम बिल्डर है, आप एक बिजनेसमैन, एक बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो आपके नीचे जो टीम आएगी, तो वो टीम किस तरह, आपके नीचे जो लोग होने चाहिए वो आपसे भी ज्यादा काबिल होने चाहिए। आपकी काबिलियत यह है कि आपके नीचे वाले लोग आपसे ज्यादा काबिल होने चाहिए, ताकि वो आपको प्राउड फील कराएंगे। यकीनन वो आपके साथ मिलकर आपको भी कामयाब करवा देंगे और आप उन्हें कामयाब कर देंगे। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम लोग अपने जो नीचे टीम में बंदा आ रहा है ना, उसको समझते हैं कि शायद वो कोई बड़ी कोई छोटी चीज है जिसे कुछ नहीं पता, बस सारा कुछ हमने ही सिखाना है। और अपनी टीम को उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे जज करें। अब अगर परफॉर्मेंस की बेस पे चलेंगे तो यकीनन आप ग्रो करेंगे। और ऐसा ही होता है कि जैसे मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट थ्योरी बताई कि अगर एक बंदा डॉक्टर है, मतलब एक बंदा मतलब डॉक्टर बनता है, वो पहले कहीं जॉब करता है तो वो यकीनन वो एम्प्लॉय है। उसके बाद अगर वो अपना छोटा सा क्लिनिक खोल लेता है तो फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद वो अपना एक हॉस्पिटल बनाता है जिसमें अपने जैसे छोटे छोटे बहुत सारे डॉक्टर्स रख लेता है, अब वो बिजनेस ऑनर है। फिर उसके बाद उसने उस पैसे से, जो उसने पैसा कमाया, जो बचाया, वो उठा के किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगा देता है एज अ इन्वेस्टर, तो अब वो इन्वेस्टर है। आपको हर जो थ्योरी है, सारा विजन भी दिया गया, जॉब और बिजनेस के बारे में फर्क भी बताया गया।
تو جاب کا یقیناً مطلب یہ ہے کہ جسٹ اونلی فار باس، یہاں پر صرف باس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے. اور جو بزنس ہے اس کا یقیناً جو بزنس ہے نا اس میں BUISNESS یہی ہے کہ بی اپ گریڈ سیکیور، کہ ہم ادھر اپ گریڈ کریں خود کو، سیکیور کریں اپنے بزنس کو، اور ہم ادھر سیکیور ہوتے ہیں ایک بزنس میں انڈیپینڈنٹ. بزنس کا آئے آپ کو کہتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو. اور اینڈ این اسٹینڈ فار ناؤ، یعنی اب ایلیمینیٹ سلیوری، یعنی کہ سلیوری ہوتی ہے غلامی کی سوچ. یعنی آپ اگر جاب ہولڈر ہیں تو ہیں، لیکن ایسے اپنی سوچ کو بڑا کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بی سکسیسفل، اور اینڈ میں آپ کی سکسیس آپ کے ساتھ ہے کہ اگر آپ رسک لینا جانتے ہیں، آپ ٹیم بلڈر ہیں، آپ ایک اچھے بزنس آنر ہیں، اور آپ ایک بزنس کو بنانا اور ہینڈل کرنا جانتے ہیں، اور اپنے معاشرے کی آبزرویشن کے بعد ویسا ہی بزنس جو ہے وہ کھڑا کریں. اور یقیناً یہاں پر جب آپ لوگ آئے ہیں تو ایک ایسا بزنس ہے جس سے آپ لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے. اور اس پلیٹ فارم کی، اس بزنس کی بھی امپورٹینس یہی ہے کہ یہاں پہ ایک اچھی ٹیم بلڈ کر کے ان لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہیں. اور یہاں پر پہلا اسٹیپ بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے لرننگ کرنی ہے، کنٹینیوسلی مسلسل اپنے لرننگ فیز جاری رکھیں. اب تک بھی یعنی کوئی بھی جو لرننگ فیز ہے کسی کا بھی کسی بھی عمر میں ختم نہیں ہوتا. ہمارے اس جو بیچ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ اچھی ٹیم ہے، جن کی اچھے رینک پر بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے اس بیچ میں ایڈ ہے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر سیکھنے کی لگن ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی پوائنٹ ایسا آ جائے گا جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے نہ آتا ہو. تو اپنے اندر اس چیز کی اسکل کو بھی، یہ بھی ایک ہنر ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو سیکھوں، ٹھیک ہے. اور ہمیشہ اپنے دماغ کو، اپنے نظریے کو پازیٹیو رکھیں. یہ اگر آپ ایک بزنس کرتے ہیں، اس بزنس میں آ رہے ہیں، تو کوئی کیا سوچتا ہے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا سوچے گا کہ میں کس طرح کا بزنس کر رہا ہوں. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے یعنی آج ڈل ہیں، کچھ بھی نہیں کر پا رہے. دو بھائی ہیں نا، تو ان میں سے وہ بس کس وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے کہ ایک اگر سکسیسفل اور ایک انسکسیسفل ہے، کیونکہ وہ سوچ کی بیس پر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے آپ تمام لوگوں سے آج جو ہے 4 کوادرنٹ تھیوری اور جاب ورسز بزنس کو ایکسپلین کیا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو جو ہے اچھے طریقے سے میں وہ چیز پہنچا پائی ہوں جس مقصد سے میں یہاں پر آئی تھی. اور جو شروع میں انٹرپشن ہوئی اس کے لیے بہت زیادہ معذرت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور فیڈ بیک لازمی طور پر دیجیے گا. اللہ حافظ.